عبد القادر میمن صاحب پیٹرن پاکستان ٹیکس بار ایسوسیشن، سر آپ سے درخواست ہے پلیز تشریف لیں۔ رانا منیر حسین پریزیڈنٹ پاکستان ٹیکس بار ایسوسیشن، سر آپ سے ریکویسٹ ہے اسٹیج پہ تشریف لیں۔ زاہد پرویز صاحب پریزیڈنٹ لاہور ٹیکس بار ایسوسیشن، سر اسٹیج پہ تشریف لیں۔ آج کے ہمارے چیف گیسٹ جناب خواجہ عدنان ظہیر صاحب ڈائریکٹر جنرل FATF سیکریٹریٹ پاکستان، سر ویلکم۔ محمد نعیم شاہ صاحب فارمر پریزیڈنٹ پاکستان ٹیکس بار ایسوسیشن، منور شیخ صاحب فارمر پریزیڈنٹ پاکستان ٹیکس بار ایسوسیشن، آفتاب حسین ناگرہ صاحب فارمر پریزیڈنٹ پاکستان ٹیکس بار ایسوسیشن، میرے کو سیکرٹری جناب اعجاز بٹی صاحب۔ آج کے ہمارے جو پہلے اسپیکر ہیں اعجاز بٹا صاحب، بائی پروفیشن ہی ایز این اکاؤنٹنٹ مور شیخہ مفتی کے پارٹنر ہیں، ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہیں۔ اعجاز بٹا صاحب پلیز ویلکم ٹو دا اسٹیج۔ سیکنڈ ہمارے جو اس سیشن کے اسپیکر ہیں طاہر محمود بٹ صاحب، بٹ صاحب سر پلیز اسٹیج پہ تشریف لائیں۔ سید تخیر بخاری صاحب، سر پلیز۔ انور کاشم ممتاز صاحب ہمارے پینلسٹ آج کے، انور بھائی پلیز اسٹیج پہ تشریف لائیں۔ میاں محمد رفیع صاحب، میاں صاحب پلیز اسٹیج پہ تشریف لائیں۔ فضل فراز شیخ صاحب، فہد ہاشمی صاحب، محمد اعظم صاحب، تمام سینئر وائس پریزیڈنٹس پاکستان ٹیکس بار ایسوسیشن، ارشد حسن میمن صاحب وائس پریزیڈنٹ پاکستان ٹیکس بار ایسوسیشن، جواد سرور بٹ صاحب پریزیڈنٹ سیالکوٹ ٹیکس بار ایسوسیشن، محمد اصغر جلندری صاحب وہ باوجود آج نہیں پہنچ سکے لیکن امید ہے ہمیں جوائن کریں گے۔ فراز بھائی تشریف لائیں پلیز۔ تو اس پروگرام میں جو ہم نے ایک ایڈیشن کیا وہ ایک کوئز پروگرام ہے، جو فرسٹ PTA کوئز پروگرام جو ہے ملٹی، اور اس کو آپ نیشنل پروگرام بھی کہہ سکتے ہیں، وہ ہم کل جو ہے جب ہم جائیں گے گرین ٹریٹ، ہمارا کل لنچ ہے نتھیا گلی میں، وہاں ہم جا کے ہم نے کچھ نہیں کرنا، صرف یہ ایک کویسچن آنسر سیشن اس سمجھ لیں، اس کو کوئز پروگرام سمجھ لیں۔ اس کو ہم نے ترتیب اس طریقے سے دیا ہے کہ ایک ٹیم جو ہے وہ ہوگی کراچی ٹیکس بار ایسوسیشن کی، جس کے 5 ممبرز ہوں گے۔ اس کے میں نے ریکویسٹ کیا ہے سید ظفر احمد صاحب سے، وہ اس کے انچارج ہیں، وہ اپنی ٹیم کے ہیڈ ہیں، وہ اپنی ایک ٹیم ابھی سے کنسٹیٹیوٹ کر لیں۔ ایک ٹیم جو ہے وہ لاہور ٹیکس بار ایسوسیشن کی ہوگی، جس کے 5 ممبرز ہوں گے۔ وہ جو سیکرٹری صاحب ہیں ہمارے، وہ اس کو آرگنائز کریں گے کہ وہ 5 لوگ کون ہوں گے۔ اور ایک ٹیم جو ہے وہ ریسٹ آف پاکستان جو ہے وہ دوست جو ہیں وہ ساری ان کی ایک ٹیم بنے گی، جس کے لیے میں نے ریکویسٹ کی ہے ہمارے جو وائس پریزیڈنٹ، سینئر وائس پریزیڈنٹ جو ہمارے اسلام آباد سے ہیں، وہ ہم نے ان سے ریکویسٹ کی ہے کہ جی آپ اس کو جو ہے ہیڈ کریں۔ میں اب بلا تاخیر آج کے جو ہمارے پہلے اسپیکر ہیں جناب اعجاز احمد بٹا صاحب، ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہیں مور شیخہ مفتی کے، میں ان سے ریکویسٹ کروں گا اعجاز صاحب آئیں اور جو ایمرجنگ ایشوز آف انڈائریکٹ ٹیکسز اس کے اوپر ایک پریزنٹیشن ہے۔ جب ٹاپک میرے ذمہ لگایا گیا ایمرجنگ ایشوز آف انڈائریکٹ ٹیکسز، تو سب سے پہلے جو مجھے چیلنج درپیش تھا کہ ایشوز تو بے شمار ہیں ٹیکس میں، اور ٹیکس کا ایز اے سوسائٹی، ایز اے نیشن پاکستان میں کل بھی یہ تذکرہ ہوتا رہا کہ ایشوز جو ہیں وہ بے شمار ہیں، اور ایشوز پرٹیکولرلی ہمارا ڈائلما یہ ہے کہ ہمارے ایشوز ریز ہوتے ہیں پرٹیکولرلی ٹیکس کے میٹرز پہ۔ اگر ہم بات کریں تو ٹیکس کے میٹرز پہ ہمارے جو ایشوز ہیں وہ نارملی جا کے تھریش آؤٹ ہوتے ہیں کوئی 25-30 سال میں آن ایوریج، اور جب وہ ایشو تھریش ہو جاتا ہے تو جو ریلیونٹ پروویژن جس سے ریلیٹڈ ڈسپیوٹ ہوتا ہے وہ omit ہو چکی ہوتی ہے۔ تو پرٹیکولرلی آج بھی اگر ہم پری ڈومیننٹ ایشوز دیکھیں جو ٹیکسیشن میں ہمیں پیش آ رہے ہیں، ان میں سے میجورٹی آف دا ایشوز جو ہیں وہ پچھلے 10 سالوں سے ریز ہو رہے ہیں، پچھلے 10 سالوں سے ریز بھی ہو رہے ہیں اور وائڈلی ڈیبیٹ بھی ہو رہے ہیں۔ بٹ اسٹل جیسے کہ کل شعبان صاحب بتا رہے تھے کہ
ट्रिब्यूनल कराची में भी अभी इस वक्त 2016 की अपीलें लगी हुई हैं, 2016 की अपीलें शुरू हुई हैं। इट मीन्स कि जो डिस्प्यूट अगर कोई इंटरप्रिटेशन का या इशू का या एडमिनिस्ट्रेटिव इशू या कोई डबल इंटरप्रिटेशन का इशू 12-13 में भी रेज हुआ है, दैट इज स्टिल इन आइदर इन अपेलेट फोरम और हाई कोर्ट। तो जो इमर्जिंग इश्यूज हैं वो मेरी कोशिश है कि मैं समरी मैनर में जो मेजॉरिटी सिग्निफिकेंट इश्यूज हैं पिछले 10 सालों से जो परसिस्ट भी कर रहे हैं, आप सब लोग चूँकि उनसे फेमिलियर हैं, तो आपके इंटरेस्ट को भी इंटैक्ट रखते हुए मैं उसको थोड़ा सा ब्रीफ अपडेट की शक्ल में आपसे करूं, और थोड़ा सा मैंने कोशिश की है कि इसको डिफरेंटली देख लूं, बजाय इसके इशू के इन्वेस्टमेंट के जो सोर्स ऑफ डिस्प्यूट या सोर्स ऑफ इश्यूज है, इश्यूज जहाँ से अराइज होते हैं उसके हिसाब से मैं इश्यूज को कैटेगराइज कर दूँ। ये मैंने बता दिया जी, CIT वर्सेस पाकिस्तान सऊदी फर्टिलाइजर्स। दूसरा इन्होंने इशू रेज किया था CP नंबर 1275 ऑफ 2009 decided by Honorable Larger Bench of the Supreme Court of Pakistan on 13th of March 2023. It is approved for reporting, but it has not so far been reported. दूसरी बात टैक्सेस की, सर्विसेज टैक्सेस के हवाले से बात हुई थी, तो सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ कि अभी तक हम ये इस बात पे फंसे हैं कि PRA प्रॉपरली कॉन्स्टिट्यूट हुआ है या नहीं हुआ। आप तो गुड्स की बातें कर रहे हैं, और इसी माह केस डिसाइड हुआ है निशात होटल्स और वर्ल्ड कॉल। अनफॉर्चुनेटली हम उसमें वकील हैं, तो उसमें विद होल्डिंग रूल्स इस बुनियाद पे अनलॉफुल डिक्लेयर कर दिए गए हैं कि PRA ही प्रॉपरली कॉन्स्टिट्यूट और अपॉइंट नहीं हुआ। ये एक दूसरी बात। तो अब मैं बिला तहीर जो है राहिब मुबारक साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि आए और आज के लेक्चर को। मैंने जब से इस प्रोफेशन में मैं आया हूँ तब से लेके आज तक हर साल बजट आता रहा है, हर साल हम बजट के ऊपर बहस भी करते रहते हैं, पॉलिसीज़ भी देखते हैं। यकीन माने कि इतने सालों गुजरने के बावजूद कम अज़ कम मैं अपनी ज़ाती हैसियत में कहना चाहूँगा कि किसी भी साल का कोई एक भी बजट मेरे सामने ऐसा नहीं आया जिस पे मुझे ये लगा हो कि ये हमारे मुल्क के लिए कोई पॉलिसी डिटरमिन की गई जिसका कोई लॉन्ग लास्टिंग इफ़ेक्ट आएगा। 2 साल बाद, 4 साल बाद इस पैटर्न पे चलते हुए हम किसी जगह पे पहुंच जाएंगे। जब पहले बजट आते थे, रेवेन्यू मुकर्रर होते थे, वो भी बीट होते रहे। उसके बाद हर साल बजट बढ़ते रहे और हर साल किसी ना किसी तरह से कलेक्शन तो हो गई, लेकिन क्या हम अपने मुल्क में कोई टैक्सेशन का निज़ाम वज़ा कर पाए? क्या हमारा आज का इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस, क्या ये कोई ज़ाब्ता कानून है? मेरी नज़र में ये हमारा जो लॉ है, ख़ास तौर पे 2001 के ऑर्डिनेंस आने के बाद, इट इज़ जस्ट अ प्रोसीजर टू कलेक्ट रेवेन्यू। कोई एक भी प्रोविजन क्या इसमें ऐसी है जिसको लीगल फेस के हवाले से कहा जाए कि यार ये बड़ी अच्छी है, ये मुल्क के लिए बड़ा इसका रोल होगा और आने वाले वक्त में हमारे लिए बेहतरी आएगी? हर बजट में हमेशा सिर्फ एक ही चीज़ पे फोकस किया गया कि रेवेन्यू कलेक्शन बढ़ानी कैसे है। कभी ये नहीं कि कोशिश मुझे नज़र आई कि हमने अपने टैक्सेशन सिस्टम को ठीक करने के लिए क्या करना है, हमने क्या पॉलिसी बनानी है। कभी हमारे टैक्सेशन सिस्टम में कंसिस्टेंसी नहीं आने दी गई और उसी की बदौलत हम पहले भी मकरूज़ थे, हम आज भी मकरूज़ हैं, और आज ये हाल है कि हमारे आने वाली 4-5 नस्लें भी हमने मकरूज़ कर दी हुई हैं। 2017 में गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने ये समझा कि इसको प्रोहिबिशन में डाला जाए और एक लॉ बनाया जाए बेनामी ट्रांजैक्शन प्रोहिबिशन एक्ट के नाम से। बेसिकली उसका ऑब्जेक्टिव डिस्करेज करना था एंटी मनी लॉन्ड्रिंग को, और इसी तरह जो डिफरेंट इल गॉटन मनी है उसकी जो पार्किंग है उसको, और यही वजह थी कि इसका बैन लॉ बनाने की। मैं थोड़ा प्रेसिडेंट साहब स्पीड से चल रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ कि मैक्सिमम चीज़ें डिलीवर कर सकूँ। बेनामी ट्रांजैक्शन का जो एक्ट है, लॉ है, इसमें 2 चीज़ें
बार बार इस्तेमाल होती है। जी सर, एक है बेनामीदार और दूसरा है बेनिफिशियल ऑनर। बेनामीदार से मुराद जो जिसके नाम प्रॉपर्टी खरीदी जाती है उसको बेनामीदार कहते हैं अंडर द बेनामी लॉस। यानी अगर मैं एक प्रॉपर्टी बी के नाम परचेज करता हूँ, वो प्रॉपर्टी मेरी है, तो जो बी है वो मेरा बेनामीदार है। इस लॉ में ये लफ्ज़ बार बार इस्तेमाल होगा और मैं इसमें बेनिफिशियल ऑनर होगा। हमारे चीफ गेस्ट हैं ख्वाजा अदनान ज़हीर साहब डीजी नेशनल FATF के, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँ ख्वाजा साहब वेलकम टू द डाइस। और ख्वाजा साहब ने कि हमने इनके साथ एज ए चीफ कमिश्नर और RTO भी काम किया और भी बहुत सारी पोस्ट पे बोर्ड में भी एज ए मेंबर काम किया। ऑलवेज हमेशा बड़ी पॉजिटिव कोऑर्डिनेशन हुई। ख्वाजा साहब प्लीज़ वेलकम। कुछ बातें उन्होंने कही कि जी हम एक लफ्ज़ यूज़ करते हैं हाउ मोड, के प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई कर दिए लेकिन इसको हाउ मोड में कन्वर्ट। तो दोस्तों बात ये है कि जहाँ से बात शुरू होती है वो होती है आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम। आज के सेशन में जितनी भी प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई हुई, लाजमी नहीं ये 6 महीने में या 1 साल में ट्रांसलेट होंगी इनटू एक्शंस। इट माइट टेक 2 years 3 years, लेकिन ये होंगी ज़रूर। मेरा और शहबाज भट्ट साहब की हमेशा लड़ाई होती रही ट्राइब्यूनल से 2000 के ज़माने से, लेकिन जो लड़ाइयाँ तब हुई वो आज किसी न किसी एक्शन में ट्रांसलेट हुई हैं। छोटी छोटी बातें 1-2 करूँगा जी, फिर मनी लॉन्ड्रिंग पे थोड़ी सी बात कर लेंगे। ताहिर भट्ट साहब की बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन थी माशाल्लाह, उन्होंने बड़ी अच्छी बातें की। इसी तरह भुट्टा साहब ने भी बहुत की। हम एक चीज़ में लैग कर रहे हैं, वो है टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन। ये आपके एंड पे भी है और ये FBR के एंड के ऊपर भी है। देखो दोस्तों, जब दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी मोबाइल की नोकिया थी जो ख़त्म हो गई, और जिस दिन नोकिया को टेक ओवर किया सैमसंग ने, तो CEO ऑफ नोकिया वाज क्राइंग एंड जस्ट अटरिंग वन वर्ड कि वी लॉस्ट द वर्ल्ड जस्ट बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन। हम टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन पे नहीं गए, जिसकी वजह से आज हम, लेकिन अब दुनिया तो इस टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन से 4 कदम आगे गई। जो को भट्टा साहब ने भी कहा और बाकी दोस्तों ने भी कहा, दैट इज़ AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ज़माना आने वाला है, अगर दुनिया ने इसको रोका ना तो मेरी और आपकी ज़रूरत नहीं रहेगी। सिंपली मोबाइल को कहेंगे कि जी ये इनकम है, इसकी रिटर्न बना दो। और चैट GPT के जितने प्रोग्राम हैं वो आज भी, यू जस्ट ट्रायल वर्जन है व्हाट्सएप के ऊपर चैट GTP की। उसको सिंपल कहें, आई एम इन पाकिस्तान, मेरी ये टैक्सेबल इनकम है, टैक्स कैलकुलेट करके दो। आई बेट सर विद इन 10 सेकेंड वो एग्जैक्ट टैक्स कैलकुलेट करके देगा। एक कामयाब वकील के लिए 2 चीज़ें बड़ी अहम हैं, ड्राफ्टिंग और प्लीडिंग। एक वकील को मेरे ख्याल में अच्छा ड्राफ्टिंग भी उसको आनी चाहिए और प्लीडिंग भी आनी चाहिए। लेकिन ड्राफ्टिंग के साथ साथ मैं समझता हूँ अगर आपकी ड्राफ्टिंग तो बहुत अच्छी है लेकिन खुदा न खास्ता प्लीडिंग अच्छी नहीं है तो हमें नुकसान हो सकता है। क्योंकि प्लीडिंग ही सबसे, मेरी नज़र में जो मेरा एक्सपीरियंस है, प्लीडिंग सबसे अहम है। मैंने ड्राफ्टिंग बहुत अच्छी कर ली लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं कोर्ट में जाके प्रॉपरली अपनी बात को जज साहब को कन्विंस ना कर पाया, तो मेरी जो ड्राफ्टिंग है वो शायद 3 नंबर हासिल नहीं कर पाती। मैं बिला ताकीद, क्योंकि हमारा प्रोग्राम ऑलरेडी कुछ लेट है, दरख्वास्त करूँगा जनाब शहबाज भट्ट साहब से कि तशरीफ़ लाएँ और आर्ट ऑफ प्लीडिंग के ऊपर हमें गाइड। TW टेंटल के 1979 का उसकी किताब के ऊपर एक कोड है, याद आ गया, जो कहता है कि एक्सपीरियंस इज अनडाउटेडली अ ग्रेट टीचर, येट इट मे बी काउंटर प्रोडक्टिव। ज़्यादा एक्सपीरियंस भी बाद का काउंटर प्रोडक्टिव हो सकता है। इफ़ what has been cultivated and defined are bad habits. What are bad habits? Bad habits means we become emotional about the case, which a lawyer, a professional lawyer is not required to be.
The point is that excellence is the product of the diligent study and application of sound principles, not simply the accumulation of items and time logged in. Another book which was wrote 30 BC before, it was written that no rule in the handbooks are capable in themselves of making brilliant performances out of those who intend to dispense with practice and exercise. हमारी खुद आपसे दरख्वास्त ये होगी कि उन फील्ड्स को ओपन छोड़ दिया जाए और उस पे जो भी कार्रवाई करनी हो बाद में आप ज़रूर करें. फ़र्ज़ करें अगर किसी ने कोई गलत क्लेम कर लिया है तो उसको ज़रूर आप नोटिस दें, आपके पास कानून, लेकिन उसकी रिटर्न रोक लेना और उसको ये कहना कि इतने आपको यही करना होगा जो सिस्टम कह रहा है, आई थिंक दिस इज़ नॉट इन अकॉर्डेंस विद द बेस्ट प्रैक्टिसेस. आई थिंक ये देखने की ज़रूरत है. मेरी गुजारिश होगी कि आप दूसरी ऑनरेबल चीफ गेस्ट साहब, जो हम सब महसूस करते हैं वो ये करते हैं कि हम जब कभी भी पड़ाल को या हम जब कभी भी कोई भी कम्युनिकेशन करते हैं, उस कम्युनिकेशन का कोई रिटर्न नहीं आता. आई एम श्योर आपके पास कोई ना कोई सिस्टम होगा जिसके तहत कोई चीज़ को खत आता होगा, उसका इन्वर्ट होता होगा, उसका कोई जवाब देने का मैकेनिज़्म होगा. हमारे ये एक्सपीरियंस है कि अल्हम्दुलिल्लाह FBR भी कोई जवाब देने का ख़ास कोई वो नहीं है ज़िम्मेदार, और मेरे ख्याल में पराल में आई एम श्योर आपके आने से इसमें कोई बेहतरी आएगी. तो ये मुझे बताना था कि इसका कोई मैकेनिज़्म आप अपने पास डालें कि कोई ख़त आता है तो उसका जवाब जाना है या कोई उसकी रिप्लाई जानी है, ताकि हमें ये पता चले कि हाँ हमारा वो ख़त आप तक पहुंचा है या नहीं पहुंचा. कम से कम कोई काइंडली एक्नॉलेज हो जाए. हमने जैसे अपने ऑफिस में अपने स्टाफ को ट्रेन किया हुआ है कि जिस दिन मेल आए आपने जवाब ये देना है कि जी आपकी मेल एक्नॉलेज हो गई, हम विद इन 3 days 4 days आपको रिप्लाई करेंगे. देयर मस्ट बी सम सिस्टम प्लेस whereby I as a taxpayer should feel that कि मुझे जो है वो आप तक मेरी बात पहुंची है. तीसरी बात ये कि आपने देखा होगा, मुझे ज़ाहिर बात है आपका एक्सपीरियंस ज़्यादा है मेरे से, तो कि दुनिया के तमाम अच्छे ममालिक में, डेवलप ममालिक में ये होता है कि जब कभी भी किसी सिस्टम को प्लेस किया जाता है, जब किसी कानून को बनाया जाता है, तो उसको पब्लिक ओपिनियन के लिए डाला जाता है. फॉर एग्जांपल जैसे आपने वर्जन 2 डाला, उसका कोई ट्रायल एरर हमारे पास नहीं आया, कोई ऑनलाइन हमने कोई इसका नहीं किया. और आई एम श्योर हमारा काम ये नहीं है कि हम उसमें खुदा न खास्ता कोई ख़राबी, बल्कि हमारा काम ये है कि हम आपके साथ हाथ जोड़ के मिल के काम करें, क्योंकि आपका और हमारा एक ही गोल है कि पाकिस्तान के लिए बेस्ट जितने मुमकिन रेवेन्यू हासिल कर सके करें, अच्छी तरह करें. एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर जो है वो कंफर्टेबल फील करे, उसको ये लगे कि हाँ जी मैं इस मुल्क में काम कर रहा हूँ जहाँ पर मुझे कन्वीनियंस दी जा रही है. सिस्टम के थ्रू कोई एक्स्ट्रा जुडिशल इम्पेडिमेंट या बैरियर नहीं लगाना चाहिए. अगर कानून कहीं पे आपको किसी चीज़ से मना करता है फिर ठीक है, लेकिन अगर कानून आपको किसी चीज़ की इजाज़त देता है तो फिर सिस्टम के थ्रू फोर्सबली एंड थ्रू एक्स्ट्रा जुडिशल मेजर्स वो नहीं लेने चाहिए. बिल्कुल टोटली इसके साथ एग्री करता हूँ, और कोशिश यही होगी कि इस किस्म का कोई भी वो ना आए. सिस्टम के थ्रू कम से कम सिस्टम आपको इस सिलसिले में कोई जो ऑब्स्टिकल है वो ना कराए. टोटली एग्री विद दिस. कानून हमारा एक रास्ता जो है वो डिफ़ाइन करता है और हमें उसी कानून पे चलना है, और सिस्टम जो है वो उसी कानून को उसको फॉलो करना चाहिए. अपनी तरफ से सिस्टम को कोई चीज़ नहीं लेके आनी चाहिए. पराल के हवाले से काफ़ी सारी बातें हुई और एक एक करके मैं कोशिश करूँगा कि उसको एड्रेस करूँ. जनरली पराल के बारे में मैं अपना अगर आपको बताऊँ, मैंने तकरीबन 2.5-3 महीने पहले मुझे ये जिम्मेदारी सौंपी गई, और लेकिन चूँकि फील्ड में रहा हूँ तो पराल के साथ गाहे बगाहे मेरा ताल्लुक़ पेश आता रहा है. पराल के जो चीज़ें जो सिस्टम्स हैं उससे न सिर्फ आप लोगों को मुश्किलात दरपेश आती हैं, उसमें फील्ड में जो ऑफिसर्स हैं
جو اپنے فیلڈ کی چیزیں جو اپنی ٹیکس کی جو ان کی ذمہ داریاں ہیں اس کو پروسیس کرتے ہیں، اس میں بھی ان کو بھی کافی ساری دقتیں آتی تھیں. تو جب میں یہ ذمہ داری جب تک مجھے نہیں سونپی گئی تھی، تو جب بھی فیلڈ میں ہوتا تھا تو میرے ذہن میں یہی آتا تھا کہ اگر مجھے موقع ملا تو شاید میں اس بات